Yeah. Now listen, you can ask doubts, right? I've got a lot of things here. Now, shall we do one thing? Yeah, Millikan oil drop experiment. We'll do that. We'll do that. Right. Now, understand that last class we were doing anode ray experiment, correct? Uh, Sonali, you have to come by your Zeal ID. Yeah, canal race. Just change that thing in your Zeal ID. Anoopji, can you check all the people are there with the ID? There are a lot of people with their names, I guess. Just check them out. Yeah. Okay. So this board is visible to you. We were doing. Yes, sir. Right. And now, yeah. Now listen. I have to start with Millikan oil drop experiment. But before starting with the Millikan oil drop experiment, no, I want to clarify certain things. In that anode rays experiment, there was a discovery of proton which takes place, right? Uh, there is a point of common sense here. You know what? There's a point of common sense here. Now, understand one thing. It was very simple to find electron because any atom, if I'm adding into the cathode ray tube, no, it will give subatomic particle which is electron. Agree? Now, the thing is, if I'm doing it anode ray experiment, if I'm doing this anode ray experiment, right? In this anode ray experiment, no, if I'm adding any gas into the anode ray tube, then I'm getting different positive charge particles. Yeah, yeah. I want to clarify one point first. I'm getting different charge particles, right? Now, thank God, in nature, I have hydrogen atom. Different charges, now understand. If I have used gas helium, I would have got He2 plus ion. That is alpha particle. Getting it? My voice is clear now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great. Yes, sir. Great. Now listen. If in the anode ray tube I have introduced helium gas, right? I would have got He2 plus ion. In He2 plus ion, right? I have two positive charge. So E by M ratio I have calculated as 2 times electronic charge divided by 4 times ANU mass. You understand this point? Now, in case of hydrogen atom, if it is losing an electron, I would have got H plus ion. Now, understand that this H plus ion is proton. Thank God, hydrogen atom exists. Then only, if I have a nucleus with one proton only and one electron, if it is losing one electron, the leftover part is entirely a proton.
I don't have any other atom in universe which on losing electron can give only a proton. Every nucleus, if I take, no, they'll have proton as well as neutron. Thank God, I have hydrogen. If hydrogen if suppose hydrogen would not have been there, no, it is not possible. It would not have been possible for me to calculate proton. Getting a point? So they introduced hydrogen gas, they got a species, and they found out that the charge of this proton is equal to the charge of electron in magnitude. Hence, if this is a particle which is counterbalancing the charges in an atom. Yeah, this is a particle which is counterbalancing the charge in an atom. Moreover, the charge is to mass ratio of proton is like 1 electronic charge divided by mass is approximately 1 AMU, that is 1 E by U. And this charge is to mass ratio of proton among positive charge particles is highest. If charge is to mass is highest, then mass will be lowest. That means this is a particle with the lowest mass having mass charge equal to electron. That is why this particle is considered as subatomic particle, which is counterbalancing the electronic charge. And you know what? When these people calculated the mass of atom, right? When these people are calculating the mass of atom, they found out that the mass of atom is an integral multiple of Now, the mass of an atom is an integral multiple of this protonic mass, getting an integral multiple of this AMU. Then they found out that this is the particle which is responsible for having mass as well as responsible for having charge in an atom. All of you understood this point. That is why they concluded that this is a subatomic particle which is giving the positive charge to an atom. Otherwise, there is no possibility. I'll get that. But thank goodness hydrogen existed. Otherwise, there is no possibility to calculate or to find out proton. Getting a point? Now, one more thing. What do you mean by anode rays? What do you mean by anode rays? All positive charge species. All positive charge ions produced in canal ray tube. Let it be your proton, let it be your alpha particle, let it be any other thing. They are all anode rays. Anode ray, which is He2 plus, is specifically known as alpha particle. And anode ray, which is proton, is formed by H plus, specifically known as proton. So proton is a type of anode ray, alpha particle is a type of anode ray, and anode ray is a superset which consists of all the positive charge ions. Getting it? So you should be clear about that alpha particle, proton, all the positive charges which are produced in the anode ray are anode rays. Anode ray tubes are anode rays. But alpha particle is He2 plus and proton, you know that, right? So I'm just rubbing this off. This is a quick revision of it. I guess have I made my point clear? So we'll move ahead. Now we have to do Millikan oil drop experiment. I rub this now. Sure, sir. Sure. What is antiproton? I'll let you know. These are subatomic particles, right? I'll just come to that point.
Okay, write down Millikan's oil drop experiment. No. Yeah, I'll repeat the properties of anode rays, right? I'll just repeat the properties of anode rays. Like someone is asking the properties of anode rays here. Anode rays are positively charged radiations which are assumed to get produced at anode, and they are moving towards perforated cathode. Point number one. Anode rays are positively charged radiation because if an electric field is applied in perpendicular direction to the propagation of that anode rays, then it will deflect towards negative charge electrode. So they are positively charged species. The charge is to mass ratio, that is specific mass, specific charge. Charge is to mass ratio, which is also known as specific charge, is depend on the nature of gas taken inside the anode ray tube. Fourth, right? They have mechanical properties. They can transfer momentum to a particular substance, for example, aluminum foil. They have better mechanical properties than cathode. Understood? They travel in a straight line, hence they can cast shadows also. Understood? So these are the properties of anode ray. Understood? So the same as cathode rays except the E by M part. Right? Now understand, we have to start with this Millikan oil drop experiment. What is the Millikan oil drop experiment? Now understand that what Millikan did. See, yeah, cathode rays are negatively charged. They are electrons, no? Electrons are negatively charged. We know that. Okay, listen. I have a particular chamber. Okay. इस चैम्बर के अंदर ना I do have a oil sprayer. A spray oil. I have a opening. Let's say this is chamber A. This is chamber B. Here I do have a microscope. This plate is connected with an potential or a battery where I kept charges to it, right? And let's say this is a switch of a battery and I can change the potential. This sign means I can change the potential according to me. Now understand here, I have a X-ray source which have a tendency to bombard the chamber B with X-rays. Getting? So I do have an X-ray source. This is an X-ray source, right? Now this is chamber B. This is X-ray source. Now understand that what exactly is going on. Now, what is the function of oil sprayer? Oil sprayer produces minute and even droplets of oil. Now understand that oil droplet is very small. This oil droplet is falling towards this chamber B
under the effect of gravity. Getting it? Now understand that these oil droplets are falling into this chamber B. When the oil droplets are falling inside this chamber B, what I did? I bombarded this oil droplets. Hey, video and audio is not clear. Everyone, It is clear, sir. clear? No, I'm getting a message that is not clear. Okay. Now understand that. It's clear. Great. Now listen. From this chamber A, from this opening O, let's say this opening is O. Right. Now understand that. Suppose oil drops are falling into this chamber B. Now what I did, I bombarded these oil droplets with X-rays. Now what? When an oil droplet is getting bombarded by X-ray, then what happens? It knocks off the electrons from oil droplet. Getting it? Now understand that if a lot of oil droplets are coming, the X-rays would have produced lots of electron inside this chamber B. So I do have large number of electrons in this chamber B, which came from these oils which are passive, which are coming from this chamber A. After some time, what I did, I switched off this X-ray. So I don't have any X-rays now. So the further oil drops are not getting ionized. Getting a point? Now listen. I'll assume an oil drop is produced by this oil sprayer. I'll assume that this oil drops are produced by these oil sprayers. These oil drops are coming inside this chamber B. When they are coming inside this chamber B, now I have a lot of electrons. So randomly, the oil drops have tendency to absorb those electrons. Getting it? Now understand that. Just tell me one thing. I have large number of electrons here. Take it. And we know the electronic charge also. When an oil drop is coming towards the chamber B, now these oil drops are randomly absorbing oils from the chamber B. Some oil drop will absorb 3 electrons, some will absorb 5, some will absorb 2, some will absorb 1. So various oil drops will absorb various number of electrons depending on what? The availability of electrons in that region. Agreed? Now listen what we did. These oil drops, when absorb large number of electrons, so when these oil drops are absorbing electrons, right, randomly, so the overall charge here becomes negatively charged. Getting it? When the overall charge on the oil droplet become negative, I switched on this thing. When I switched on, this plate become positively charged. This plate become negatively charged. Now understand that this negative charge oil droplet is falling under the effect of gravity, that is mg. Getting it? And listen, these electrons are giving some charge to it. For example, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So overall, how many electrons it has absorbed? 7 electrons. Getting it? Now, these 7 electrons are attracted by the electric field or the positive charge plate which I have applied here. So this negative charge oil will have upward force.
Yeah, it will attract. Getting it? Now listen. I know that I can vary this potential. तो मैं ना इस पोटेंशियल को चेंज कर सकता हूँ. तो मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा हूँ. तो ऊपर वाला फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है. गेटिंग इट? अगर मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा हूँ तो ऊपर वाला फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है. एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे ना ये ऊपर वाला फोर्स और ये नीचे वाला फोर्स ना एक दूसरे को बैलेंस कर देगा. एक दूसरे को बैलेंस कर देगा. और ये ऑयल ड्रॉप जो नीचे गिर रहा था, अब क्या हो जाएगा? जब नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स बैलेंस हो गया तो ये ऑयल ड्रॉप क्या होगा? बीच में तैरेगा सर. बीच में ना. नाउ ऑब्वियसली बेटा अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा ना. इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. सो होगा क्या? जब नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स सेम हो जाएगा, ये ऑयल ड्रॉप हवा में रुक जाएगा. गेटिंग इट? तो जैसे ही हवा में रुक गया ना, ये पोटेंशियल पता है मुझे, इसका mg पता है, बिकॉज यहां से mg हमने कैलकुलेट कर लिया था. जिस तरीके से ऑयल ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा था, तो आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड mg. I know the potential. By knowing these values, no, I can calculate the charge over there. जब मिलिकन ने चार्ज कैलकुलेट किया ना, तो उसने कॉमन सेंस लगाया. बहुत सारे ऑयल ड्रॉप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहे थे. कुछ ने 7 किए, किसी ने 5 किए, किसी ने 10 किए, किसी ने 1 किया होगा. तो डिपेंड ऑन द डिफरेंट ऑयल ड्रॉप्स, डिफरेंट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड. तो इस ऑयल ड्रॉप के लिए पोटेंशियल V1 लगा, दूसरे ऑयल ड्रॉप के लिए V2 लगेगा. डिपेंड करता है गेटिंग इट कितना चार्ज वो एब्जॉर्ब कर रहा है. नाउ सुनना ध्यान से. जब मिलिकन ने इसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट किया तो उसको चार्ज पता है कितना मिला? लेट्स से फर्स्ट ऑयल ड्रॉपलेट पे जो चार्ज मिला दैट इज 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. सेकेंड ऑयल ड्रॉपलेट पे जो चार्ज मिला दैट इज 5 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. थर्ड ऑयल ड्रॉपलेट पे सपोज चार्ज मिला 7 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. फोर्थ ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज मिला 10 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. तो उसने ना ये बोला कि हो ना हो जो मिनिमम चार्ज सारे लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, वो किसका मल्टीपल है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. तो हो ना हो वो जो चार्ज पार्टिकल सारे मैटर दे रहे हैं, ऑयल ड्रॉपलेट दे रहा है, ऑयल ड्रॉपलेट भी तो इजीली नेगेटिव चार्ज ही देगा ना. तो वो जो चार्ज मेरे पास आ रहा है ऑयल ड्रॉपलेट्स में, वो इसका मल्टीपल है. तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन में मिनिमम चार्ज कितना होना चाहिए था? 1.6 माइनस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. इस तरीके से मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया. बात समझ में आई? दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है. लेट्स से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैंने -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम लिया. लेट्स से मैं इसको एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेता हूं. ध्यान से सुनना, पहले सुन लो उसके बाद क्वेश्चन पूछना, ठीक है. तो मेरे पास वेरियस ऑयल ड्रॉपलेट्स. सपोज पहला ऑयल ड्रॉपलेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स. सपोज हाँ, रुको. पहले ऑयल ड्रॉपलेट में ना लेट्स से 5 टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आया, इसमें 4 टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आया, इसमें 8 टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आया, इसमें 3 टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आया, इसमें 2 टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आया, इसमें 11 टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आया, इसमें 13 टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आया. तो मिलिकन ने ये कॉमन सेंस लगाया कि ये सारे जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, इसमें जो चार्ज आ रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल है. तो ये सारे चार्जेस तभी पॉसिबल है जब मिनिमम चार्ज कितना हो?
एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जो उसने निकाला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी क्वेश्चन समझ में आया? अभी चीज समझ में आई? Sir, can you explain the experiment once again? Yeah, I'll explain you the experiment once again. Just give me a minute. Yeah, beta, ask. Ask. P001. हाँ, चार्जेस का HCF लिया गया. P001. You can ask. I have unmuted you. Yeah, you can ask. Maybe you have raised your hand, right? I have unmuted you. You can ask. Yeah. Yeah. I can't hear you. Okay, just write it down in the chat box. Okay. Now listen. I'll explain you one more time. Yeah. So how did he came to know how many electrons were getting absorbed? See, I mean, the oil droplets were absorbing the electrons. No? That's the main point I'm coming right now. Okay. See, I know that. No, there is nothing. See, oil is quite viscous, so it has high tendency to be a drop, and it is like a liquid which I can prepare, like, from which I can prepare. This is Galaxy J7 NXT. Anupji, tell that person to change it to the ID, no? Just check it out. Yeah. Okay. Now, just listen. No, he took many drops. See, he's producing lot of drops. Lot of drops are absorbing the electrons, but he is making one drop stationary at a point. So one drop stationary at a time. That means at different times he is calculating different charges on different oil drops. Now, yeah. Now listen. A very important thing here. Very important thing. See, the thing is, I told you it will be variable for all the electrons. So the potential difference he can manage by himself, not a big issue. Give me some time, guys. I'll just clarify certain things to you. I want to induce some common sense in you. Okay? Just give me a minute. Okay. Huh. Okay, just mute yourself. Who is that? Okay. अरे पण मला हे परत अडकतंय मी करू Mute yourself. Okay. Now, listen. A question. Suppose Millikan uncle went to a different universe, right? There, the atom has different amount of negative charge. So there doesn't exist any electron. Instead of electron, some other thing is there, right? So he's performing that experiment with a hypothetical atom where the negative charge is given by some other particle.
ठीक है. So the question which I'm asking you is very simple, right? So he went to two different universes and he got two different results. You have to tell me what should be the charge on that negative charge particle, right? Question ये है कि हम लोगों को ना उस वाले यूनिवर्स में जो नेगेटिव चार्ज दे रहा है ना उसका चार्ज बताना, ठीक है, जहां पे मिलिकन गया था. तो लेट्स से यूनिवर्स नंबर ए, द यूनिवर्स बी. श्रेयांश साहू, Anup ji, tell him to just put his email this thing ID. Okay. Suppose in universe A, the charges are different. The charges are different in different universes, right? Now, universe A, what he got in universe A? Listen, he got various oil droplets. So, oil droplets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We got 7 oil droplets. The charge of the 7 oil droplets. In first oil droplet, no, he got the charge of 2 electronic charge. Second oil droplets, he got the charge of 10 electronic charge. Third oil droplet, he got 14 electronic charge. Fourth oil droplet, he got the charge of, let's say, 18 electronic charge. He got charge of, let's say, 12 electronic charge. He got 16 electronic charge. And he got, let's say, 20 electronic charge. Right? Or let's say here, he got 6 electronic charge. Now, you tell me, if he is getting charges of 6 electronic charge, 10 electronic charge, 14 electronic charge, 18 electronic charge, 12 electronic charge, 16, 20, ये सारे charges कब possible है? जरा analyze करो. Minimum value of negative charge कितनी होनी चाहिए ताकि ये सारे charges possible? Common sense लगाओ कि minimum कितने होने चाहिए? 4 electronic charge. not 2. How come 2? 4 के देखो जो भी मिनिमम चार्ज होगा ना उसके मल्टीपल में चार्ज होगा. कितना तो मानते हो? मेरे पास जो भी चार्ज आएगा उसके मिनिमम मल्टीपल में आएगा. 2 electronic. एग्जैक्टली सारे बोल रहे 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. जिसे कहते हैं कॉमन सेंस. उसने क्या किया, बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स में ना जो चार्ज कैलकुलेट किया ना वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल था. तो उसने कहा जो मिनिमम चार्ज होगा ना वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा. अब इसके अंदर जो मिनिमम चार्जेस आ रहे हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, 8 आ रहा है, सारे जो है ना वो 2 के मल्टीपल है. तो जो मिनिमम चार्ज होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन पे, उस वाले यूनिवर्स के इलेक्ट्रॉन पे, वो कितना होना चाहिए? 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. बात समझ में आई? बात समझ में आई? Yes, sir. ओके. अब ना थोड़ा और कॉमन सेंस लेके आते. सपोज करो ये यूनिवर्स बी है. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 ऑयल ड्रॉप्स हैं. ठीक है. सपोज करो पहले ऑयल ड्रॉपलेट में ना चार्ज आया 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. दूसरे ऑयल ड्रॉपलेट में चार्ज आया 1.5 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तीसरे ऑयल ड्रॉपलेट में जो चार्ज आया वो आया 4 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. चौथे वाले पे जो चार्ज आया वो आया 5 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो अब तक ये बताओ मिनिमम चार्ज कितना होना चाहिए उस नेगेटिव चार्ज के पास? ये सारे चार्जेस पॉसिबल. 1 electronic charge. तो 1.5 कैसे आया? 0.5 electronic charge. एग्जैक्टली. देखो उसका मल्टीपल आना चाहिए ना. अब 1.5 का 2 होता 3, चला मान सकता था 1.5. 1.5 का मल्टीपल चार्ज नहीं होता, तो इससे भी छोटा चार्ज होना चाहिए. इतना चार्ज होना चाहिए ताकि ये सारे पॉसिबल हो. 0.5. 0.5 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. 5वां ऑयल ड्रॉप 1.25 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. अब मुझे बताओ कितना मिनिमम चार्ज होना चाहिए ताकि कितना आ जाए? 0.25. 0.25. 0.25 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा उस पार्टिकल में ताकि ये सब आ जाए.
अगर सपोज छठे पार्टिकल के अंदर उसको जो चार्ज मिला दैट इज 2.125 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 0.125. okay 0.125 right okay 7 electronic charge so obviously so the minimum charge will be should be on that negative charge will be minus of 0.125 electronic charge तो उसने ना ये कॉमन सेंस लगाया राइट या आज बेटा P006 ask सॉरी सर वो गलती से हाथ ऊपर हुआ. शाबाश ओके लोअर हैंड या चलो बात समझ में आई. अब किसी ने पूछा था कि इसको एक बार समझा दो भैया. बहुत सिंपल है. ऑयल स्प्रेयर था, ऑयल ड्रॉपलेट्स बनाया, फिर से हाँ अब क्या हुआ. सर मुझे डाउट था कि जब आपने ये किया, जब एक्सरेज ने ऑयल ड्रॉपलेट को हिट किया हाँ तब इलेक्ट्रॉन्स निकले उससे बाहर, तो फिर ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. हाँ उसके बाद फिर आपने सुनो 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 जब पॉजिटिव चार्ज आया ना तब वो सारे ड्रॉपलेट्स नीचे गिर गए. फिर मैंने ना एक्सरे बंद कर दिया तो मतलब उस चैम्बर में अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन थे. तब तक मैंने इलेक्ट्रिसिटी भी ऑन नहीं करी. समझो उस चीज को. हाँ सर. गेटिंग अ पॉइंट. मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो. गेटिंग इट. यस सर. या सर एक और डाउट था. हाँ बोलना बेटा. सर इसमें इसमें जब आप देखते हो ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर नीचे mg लग रहा है. हाँ हाँ और ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पॉजिटिव वाला पॉजिटिव प्लेट का अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है. हाँ हाँ तो बट सर नीचे वाली प्लेट से नेगेटिव प्लेट से वो रिपल्सिव. सुनो सुनो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम ही है ना. हाँ. जितना पॉजिटिव ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव उतना ऊपर रिपेल कर रहा है. वो क्यूमुलेटिव फोर्स का फॉर्मूला लगाया उसने. अच्छा ठीक है सर. ठीक है ओके. तो हटाओ इसको. What was the need of 1 second I didn't get the question. 1 second. Yeah, 1 second. Give me a minute. What was the need of separating first electron first and when the droplet just absorb electron gain? See, I know that every matter consists of. देखो क्वेश्चन ये था कि जरूरत क्या थी पहले इलेक्ट्रॉन निकालने की फिर उसके बाद नए ड्रॉपलेट डालने की. मैं कह रहा हूँ अगर मुझे पता है किसी भी मैटर के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर मैं किसी भी मैटर में से एक्सरे डालूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे ही देंगे. ठीक है. तो मेरे पास पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे. अब मेरे पास जब नेगेटिव चार्ज आया तो ऑयल ड्रॉपलेट्स के बाद पॉजिटिव चार्ज आया होगा. तो मैंने क्या किया, थोड़ा टाइम रुका ताकि वो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं जो भारी हैं वो भाई साहब नीचे गिर जाए. अब मैं नए ऑयल ड्रॉप डालूंगा क्योंकि वो न्यूट्रल होंगे, उनमें कोई चार्जेस नहीं होगा. फिर मैं उनको एब्जॉर्ब करवाऊंगा नए इलेक्ट्रॉन. अरे कहीं से कहीं तो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना. या तो एक काम करो, चैम्बर बी के अंदर पहले से ही गैस रख दो कोई भी. उस गैस के अंदर ना तुम एक्सरे पास कर दो ताकि वो गैस इलेक्ट्रॉन दे दे. उसके सारे एटम्स को निकाल दो, इलेक्ट्रॉन को रख दो, फिर ऑयल ड्रॉपलेट डालो. तो मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहे मैं किसी गैस से बनाऊं या फिर किसी भी ऑयल ड्रॉपलेट से बनाऊं. या सर हाँ सर उस चेम्बर बी में कुछ नहीं है ना, मतलब उस ऑयल ड्रॉप्स के सिवा कोई और नहीं. मीडियम तो नहीं है ना? नहीं और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स है. अगर तो सर अगर पानी डालना होता तो कुछ अलग हो जाता था. हाँ ऑब्वियसली क्या फर्क पड़ता सर? अलग हो जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती है पानी डालोगे ना तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसमें भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है. ओके. पानी भी आयनाइज हो जाएगा, वो भी कुछ करेगा.
ऑयल ड्रॉपलेट्स में सरफेस में ना प्रॉपर्टी होती है उसका सरफेस की कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है। किसी भी सरफेस ना, कोई भी सरफेस, ऑयल हो या फिर कोई भी लिक्विड हो, उसकी टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। हाँ हाँ, उसके ऑयल ड्रॉपलेट्स के सरफेस पे टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। गेटिंग अ पॉइंट? ये नेचुरल टेंडेंसी है। क्यों होता है? बिकॉज सरफेस पे एक रेसिडुअल फोर्स होता है। व्हाट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑयल? तुम यूज तो बहुत कुछ कर सकते हो। यू कैन यूज मेनी थिंग्स, ऑयल टाइप थिंग, नॉट गैस, not gas, any oil like stuff you can use, right? Any oil type stuff, it'll be like Millikan used oil, that is why we call it as oil drop experiment. Okay, now we have to do discovery of neutrons. हमको didn't it? या बोलो बेटा, SS088 अनम्यूट। या बेटा सर ये ऑयल स्पेयर उसने बनाया या फिर उस वक्त था अवेलेबल? नहीं, उस वक्त अवेलेबल था, बनाया। ठीक है, और वो ऑयल स्पेयर इतना अच्छा क्वालिटी देगा, सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स के मास ऑलमोस्ट इक्वल है। तो सर उसने वो चेम्बर्स किस मटेरियल से बनाया, ग्लास से या मेटल से? किसी मेटल 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 बेटा, मेटालिक प्लेट है ना, मुझे यहाँ पे मेटालिक प्लेट चाहिए, बाकी मैं ग्लास रखूं मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, रिजल्ट सेम आएगा अगर कोई दूसरा मटेरियल यूज किया तो? हाँ, ओके सर। Who was Goldstein? यार ये ना ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स करे और काफी चीजें निकाली हैं। एज अ साइंटिस्ट का है। अब उसमें मैं क्या बोलूं, गोल्डस्टीन कौन था? हेलो, हाँ, टेल मी। Sir, what was the use of microscope here? अरे to check whether the electron, this oil droplet came to rest or not. Okay. हाँ, Okay. निकालो। Okay, sir. Thank you. हाँ, एक्सरेज किसी भी चीज से पास कर सकता है, डिपेंड करो वो हैवी मेटल नहीं होना चाहिए वरना रोक देगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप? व्हाट इज एंटायर प्रोटॉन? अरे प्रोटॉन का जो एंटायर पार्टिकल होता है ना, एंटी मैटर, उसे प्रोटॉन कहते हैं, एंटी प्रोटॉन कहते हैं। एंटी प्रोटॉन का जो मास होता है ना, सुनो, एंटी प्रोटॉन का जो मास होता है ना, वो प्रोटॉन जितना होता है, बट जो चार्ज होता है ना वो नेगेटिव होता है। तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, एंटी प्रोटॉन के पास नेगेटिव चार्ज, इसे एंटायर प्रोटॉन कहते हैं। हाँ, बोलो बेटा। R003 टेल। अरे गॉन सर, व्हाट इज पॉजिट्रॉन? अरे इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर को पॉजिट्रॉन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जितना भारी बट उस पर पॉजिटिव चार्ज, ये एंटी मैटर है। हाँ, सो सर एक्सरे सोर्स कैन एक्ट एज आयनाइजेशन। हाँ, अरे यार एक बात बताओ, सुनो, जब हड्डी में फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर क्या कहता है? एक्सरे निकलवाओ ना, कहता है ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर एक्सरे निकलवाने के लिए कहता है ना, हाँ वेरी गुड, अच्छा एक्सपेरिमेंट समझाऊं? अच्छा समझाता हूँ मेरे। तो एक्सरे क्या करता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है। अरे जो चीज बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है, अगर बॉडी के एटम्स उसके पास आए ना, तो उन बॉडी के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, मजाक नहीं। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि एक्सरेज फ्रीक्वेंटली नहीं निकालना चाहिए, वरना क्या होता है, वो जो एक्सरेज है ना, वो तुम्हारे डीएनए वाले एटम्स के साथ कुछ कर देंगी, जिसमें म्यूटेशन हो जाएगा, और म्यूटेशन से तुम वो एक्समैन नहीं बनोगे।
गेटिंग अ पॉइंट, पता लगा एक्समैन बन गया, ऐसा नहीं है। उल्टा उल्टा कैंसर हो जाएगा, राइट? ऐसा भी होता है सर? हाँ ऐसा ही होता है। डायरेक्ट कैंसर सर? हाँ ना, बिकॉज तुम्हारा जीन डेवलपमेंट काफी अच्छा है ना, वो तुम्हारे सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। तो अगर वो सेल ग्रोथ वाला जीन निकल गया ना, तो सेल का डिवीजन अपने आप होता रहता है। ओ, एबनॉर्मल सेल डिवीजन को ही कैंसर कहते हैं ना। हाँ हाँ, आई रिमेम्बर डेडपूल। तुम्हारा ना इमेजिनेटिव स्टफ तब जाएगा नहीं। इट्स ट्रू। नाउ ए दोबारा से ब्रीफ में सुन लो। एक स्टूडेंट बोल रहा था, व्हाट इज द मास ऑफ ए वेरी स्मॉल, आई हैव गिवन यू द शीट टुडे, नो, इज वेरी स्मॉल इन AMUs only, almost negligible, neutrino and anti neutrino mass. सुनो जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट सुन लो। ऑयल स्प्रे ने ऑयल स्प्रे के ड्रॉपलेट्स बनाए। स्टॉप ड्रॉपलेट्स जो थे वो ग्रेविटी की वजह से गिर रहे थे। ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आए, जैसे यहाँ पे आए एक्सरे ऑन किया, एक्सरे ऑन किया, ड्रॉपलेट्स ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे दिया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे गिर गए। उसके बाद नए ड्रॉपलेट्स डाले, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। जो नए ड्रॉपलेट्स डाले ना, एक्सरे सोर्स बंद कर दिया, नए ड्रॉपलेट्स अंदर आए, वो न्यूट्रल ड्रॉपलेट्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ऑयल पे नेगेटिव चार्ज आया तो मैंने ये पोटेंशियल ऑन कर दिया, यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन किया तो ये नेगेटिव चार्ज को ना पॉजिटिव चार्ज प्लेट ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर दिया, और नीचे Mg है। तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल ऐसा सेट करूंगा जिसमें ये रुक जाए, मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे। जब वो बैलेंस होगा ना, तो मुझे एग्जैक्ट चार्ज पता लग जाएगा ऑयल ड्रॉपलेट पे। जब मुझे एग्जैक्ट चार्ज पता लग गया ना ऑयल ड्रॉपलेट पे, तो मैं बहुत सारी ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज पता करूंगा, और मैं ये देखूंगा कितना मिनिमम चार्ज होना चाहिए ताकि ये सारे चार्जेस पॉसिबल हैं, और वो मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये पूरा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है? हाँ अरे होल डाला ताकि ऑयल ड्रॉपलेट नीचे जाए। जब तक नीचे नहीं जाएंगे तब तक कैसे एनालाइज करोगे? हाँ, सारे नीचे नहीं, मतलब एक एक करके नीचे जाए एक ही लाइन से, ताकि तुम एनालाइज तो करो। चलो आगे चलते। ओके, हाँ प्लम पुडिंग मॉडल। पहले रुक जाओ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसा डिस्कवर हुआ, राइट? सुनो, समझना इस चीज को, राइट? बहुत बहुत सिंपल चीज है, ठीक है? सर व्हाट इज, अरे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, आई लेट यू नो, आई टेल यू। एटमाइजर, एटमाइजर, no, it's not wrong, I'll let you know. Just let the portions go slowly ahead, then I'll let you know. Just leave that question for some time. Okay, where were we? Discovery of neutron. अब ना समझना है इस चीज को। सपोज मैंने कार्बन एटम लिया, कार्बन एटम, राइट? तो अब तक ना
हम लोग प्रोटॉन डिस्कवर कर चुके हैं और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन था नियरली 1 AMU, एक्चुअली थोड़ा ज्यादा होता है 1 AMU से, प्रिसाइजली स्पीकिंग 1.673 into 10⁻⁻27 kg, ये मास था प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना था 9.1 into 10⁻31 kg। चार्ज की बात करूं तो प्रोटॉन का जो चार्ज था दैट इज प्लस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इसका जो चार्ज था दैट वाज माइनस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अभी सुन लो, एक AMU होता कितना है? 1 AMU का जो मास होता है ना अप्रोक्सीमेटली 1.66 into 10⁻⁻27 kg होता है। तो इन सब इसका मास इससे तो ज्यादा ही है ना, प्रोटॉन थोड़ा भारी होता है एक AMU। अब सुनना है इस चीज को, तो ये मास आ गया, चार्ज आ गया, तो इतना पता लग गया। तो हमने क्या किया, हमको ये पता लग गया कि जो प्रोटॉन है ना उसका मास बहुत ज्यादा है, तो ये मास ऑफ एटम को कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, और ये चार्ज को भी कंट्रीब्यूट करता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करता है। तो एक चीज समझना है इससे, सपोज मेरे पास कार्बन एटम है, कार्बन का मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है। तो पहले हमको ये पता लगा था कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लोगों ने बोला अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मास तो कंट्रीब्यूट करता नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके पास इलेक्ट्रॉन चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए 6 प्रोटॉन होना चाहिए। तो लोगों को लगा था पहले कि एक एटम में ना सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अजम्पशन था उनका। तो इलेक्ट्रॉन तो कोई मास कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, कहते ये यूजलेस है। प्रोटॉन व्हाट विल डू, इट विल कंट्रीब्यूट चार्ज आल्सो एज वेल एज मास। तो मास कितना कंट्रीब्यूट किया उसने 6 AMU अप्रोक्सीमेट। तो कार्बन का जो मास कैलकुलेट किया ना दैट कम्स आउट टू बी 12 AMU। तो उनको लगा कि यार नहीं हो ना हो, इस एटम में ना एक ऐसा पार्टिकल भी होना चाहिए जो चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सिर्फ मास कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ प्रोटॉन लूंगा तो मास 6 AMU आना चाहिए, ओवरऑल मास कितना है 12 AMU। तो मास जो है एटम का वो हमारे कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि यार हो ना हो देयर इज अ न्यूट्रल पार्टिकल which contribute mass, getting it? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत टाइम बाद हुई थी, जब जे थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया था ना उसके बाद न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। इवन दो जब तुम्हारा रुदरफोर्ड अंकल आए थे उसके बाद आया था न्यूट्रॉन। लोगों को पता था कि कुछ है ऐसा, बट डिस्कवरी बहुत लेट हुआ। बहुत लेट इसलिए हुई क्योंकि इसके पास चार्ज नहीं है ना। अरे यार तो पता है ना, मास नंबर कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। अगर हाइड्रोजन का मास में हाइड्रोजन का मास अप्रोक्सीमेटली 1 AMU मान लूं, तो कार्बन को और हाइड्रोजन को मैं अगर 2 बीकर में भर दूं इक्वल अमाउंट में, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स में, राइट, वो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लिए थे उन्होंने पहले तो अपने आप आ जाता है। मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन का मास अगर मैं 1 AMU ले लूं ना और कोई और गैस ले लूं, तो उनमें मुझे पता लग जाएगा रिलेटिव भारी कितना है कोई, गेटिंग अ पॉइंट। तो उससे पता लग जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1/1836 AMU which is much lesser than 1 AMU, तो उसका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। अच्छा एनीवेज सुनो, कैडविक, व्हाट कैडविक डिड, कैडविक ने क्या किया, बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल के साथ बम्बार्ड किया, इसको ना आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन किया।
इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन। ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल ना बेरिलियम के अंदर बम्बार्ड किया, मतलब दोनों के न्यूक्लियस कंबाइन किए, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन, राइट। तो जब इसको बहुत हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल को इसके साथ कोलाइड किया ना, तो एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन हुई। वो जनरली नहीं होती, तुमने करवाई, इसलिए आर्टिफिशियल रिएक्शन, और तुमने इसको म्यूटेट करके कोई और एटम बनाया। तो जब हीलियम का न्यूक्लियस बेरिलियम पे बम्बार्ड करता है ना, तो मेरे पास आता है कार्बन 12 प्लस एक पार्टिकल आता है। अब एक बात बताओ, बहुत टाइम पहले की बात है, पहली क्लास में ड्रॉबैक्स ऑफ हम डाल्टन अंकल कर रहे थे, राइट। तो उसके अंदर रेडियो एक्टिव रिएक्शन में तुमको एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद है कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन में मास सेम नहीं होता है, मास लॉस होता है, बट मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंजर्व होता है, याद है? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 4 इसका 2 4 प्लस 2 6। तो यहाँ क्या है? 6। तो एक ऐसा पार्टिकल आया जिसका एटॉमिक नंबर 0 है। ओके, यहाँ पे 13 इधर 13 बचा कितना? 12 1 एक। क्या है? न्यूट्रॉन ही है जिसका चार्ज 0 होता है और मास 1 होता है। तो he got a subatomic particle neutron. This is the discovery of neutron that time. अच्छा, समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। Great. So that is done by Chadwick uncle. Now listen. So shall I rub this now? Yes. गाले और गाना। हाय राम। Listen. वाहेगुरु। अच्छा, आज मैं तुमको एक हैंड रिटन शीट दूंगा होमवर्क में, हैंड रिटन कर लेना। क्या उसमें? अरे क्वेश्चन होंगे बेटा, वो हाइपोथेटिकल यूनिवर्स वाले, ठीक है? अच्छा। तो कर लेना उसको, और कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन और होंगे विच विल टेस्ट योर कॉमन सेंस। कितना हो गया? ज्यादा नहीं, 20-25। ओके, ठीक है। हाँ, अच्छा सुनो, अभी कितने अभी था हमारा कौन सा? देखो, हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। तो चार्ज की बात करते हैं। चार्ज इन कूलम ले लो, चार्ज इन ESU ले लो, मास ले लो, गेटिंग इट? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 -1.6 into 10 to the power -19. ESU में बोलो जल्दी। -1 ESU 4.8 -4.8 into 10 raised to -19. ए है 10 कूलम में 10⁻19, ESU में 10⁻10। यूनिट्स अलग है, सेम चीज है। प्रोटॉन चार्ज +1.6 1.602 into 10 raised to -19. Then 19. 4.8। न्यूट्रॉन 0 न्यूट्रल। मास
listen, approximately 1 AMU, approximately 1 AMU, approximately 1 by 1836 times AMU. काफी जगह 37 भी होता है, 39 भी होता है, मैनेज कर लेना, ठीक है। अभी जब इन तीनों पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई ना, तो देखो जे थॉमसन का मॉडल आया था जब न्यूट्रॉन नहीं आया था, राइट। उसके अंदर ना क्यूरियोसिटी फैक्टर बहुत था, एंड आई गेस उसको ना वाटरमेलन ज्यादा पसंद होगा, ठीक है। तो उस भाई साहब ने क्या किया, रैंडमली, हाँ रैंडमली, साउंड आ रही है, साउंड आ रही है। हाँ सर। उसको नहीं आ रही लैग हो रहा है है, सर, बरोबर है। हैंग हो रहा है बहुत। थोड़ा सा लैग हो रहा था। अब नहीं है? नहीं है सर, नहीं सर। अरे ठीक है, अब सुनो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 by 1836 AMU। अच्छा, सुनो अभी सर जे थॉमसन, देखो इंसान के अंदर ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी फैक्टर, ठीक है ना। उस क्यूरियोसिटी फैक्टर ना, मतलब जो भी आदमी कुछ भी बोलता है ना, and they get very curious about it. For example, you buffoons, right? You people are very amazed about the universe. बोला 3 टाइप के मैटर होते हैं, मैटर होगा, एंटायर मैटर होगा, अब डार्क मैटर भी हो गया, राइट। कौन है? हाँ, M014। सर ऑडियो क्लियर नहीं है। सीरियसली? सर ऑडियो क्लियर नहीं है आपका। अच्छा, बच्चा पार्टी आवाज आ रही है? रेस्ट ऑफ द बच्चा पार्टी। हाँ सर आ रही है। हाँ सर आ रही है। सर आ रही है। आ रही है आ रही है उसको सर। क्लियर नहीं है यार, आई गेस उसके यहाँ पे कुछ इश्यू है। इंटरनेट कनेक्शन। कोई नहीं, रुको। हाँ, कुछ करते हैं, रुको। ओके, सुनो, अभी आ रही है? अभी आ रही है? अभी हाँ, हाँ सर आ रही चलो, है। नाइस, लिसन नाउ। हुआ क्या, जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए ना, तो जे थॉमसन है ना, ही इज वेरी क्यूरियस, राइट, कि ऐसा कैसे अरेंजमेंट होगा। Now I guess he liked watermelon or plum pudding, I don't know, whatsoever it is, right? So I don't know from where he got this idea, ठीक है, क्या किया उसने, कैसे लेके आया। Simply in the morning he woke up and he devised a model। उस मॉडल को क्या बोला उसने? प्लम पुडिंग। हाँ, watermelon or plum pudding model, right? Now listen, बहुत फनी था ये, बहुत ज्यादा फनी था। Okay, listen, what did he told about that model, J. Thomson? Right, he has given plum pudding / watermelon model। सर वो मॉडल फेल हुआ था ना? हाँ, बहुत बुरा। पता है क्या बोला उसने? An atom is considered as a hard rigid sphere। An atom is considered as a hard rigid sphere in which
the overall positive charge in which the overall positive charge and mass of an atom is smeared. Smeared का मतलब पता है ना, spread. तो पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास जो है ना पूरा स्प्रेड है इधर एटम के अंदर, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड एन एटम like plums in pudding or seeds in watermelon. So the electrons are embedded inside an atom like plums in pudding or seeds in watermelon. Getting it? उसका जो ये मॉडल था ना, this model was based on one principle. एक ही principle पे based था. And what was that principle? The principle of this model is based on the principle of charge neutrality. What do you mean by charge neutrality? What do you mean by charge neutrality? It is Atom was neutral. yeah, amount of positive charge will be equal to the amount of negative charge. Getting it? The approximate radius of atom. The approximate radius of an atom is nearly 10 raised to power minus 10 meter. Getting it? That is the thing which he has told us. उसने हमको ये सारी चीजें बताई. Getting it? That is J. Thomson model. Angstrom. 10 to minus 10 meter is 1 angstrom. 1 angstrom. So the overall positive charge and the mass of an atom is spread inside an atom. Yeah. According to Thomson, right? उसने क्या किया? He says that the overall positive charge and the mass of an atom is spread in a hard, rigid sphere. एक spherical mass है, उसमें पूरा positive charge और mass spread है, और जो electrons है ना, वो बीच में embedded है इस atom के, like seeds in watermelon or plums in pudding. Getting it? Getting it? Yes, sir. ये जो प्रिंसिपल, ये जो मॉडल था, वो इस प्रिंसिपल पे था कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा ना उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा. So that is plum pudding model. I guess. सर Got फिर it, ये right? फेल क्यों हुआ? हाँ, फिर ये फेल क्यों हुआ सर? क्या फेल क्यों हुआ ये फेल क्यों हुआ? मॉडल? अच्छा सुनो ना, ना उस वक्त न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, ठीक है. उसके बाद रुदरफोर्ड ने ना अपना एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा रे गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट किया था. उससे जो ऑब्जर्वेशन मिली ना वो इसने नहीं दी.
और ना कभी दे पाएगा, और इसका कोई मैथमेटिकल बेस नहीं था यार मॉडल। अच्छा, अगर मैं कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो किसी चीज के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा ना कि ऐसा क्यों है। जस्ट बिकॉज मुझे वाटरमेलन पसंद है मैंने बोल दिया क्या, तुम एक्सेप्ट कर लोगे क्या? एंड people were crazy at that time, they accepted it and they followed it for some time, know that? वो तो भला रुदरफोर्ड का जिसने आगे खोली, ठीक है। अच्छा हटाओ इसको। सर फिर भी थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला सर। तभी तो कह रहा हूँ these scientists are one of the big shot of that particular region। अच्छा नहीं हटाऊं तो उस टाइम के काफी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट थे। See, he would have calculated on some basis, right? The exact thing, तो I'll let you know in this Bohr model। बोर ने बताया था कि exactly कैसे equal to किसके आना चाहिए, but ये approximately rough figure है। हाँ, रुदरफोर्ड का भी ड्रॉप है। बोर का भी मॉडल गलत है क्या? बोर का भी गलत है, रुदरफोर्ड का भी गलत है। तो कौन सा वाला सही होगा? क्वांटम 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 मॉडल आगे लास्ट में पढ़ेंगे। हाँ। समझ में आया? हाँ सर। चलो नाइस। तो अभी हटाओ इसको। हाँ सर, हटा दो सर। Yes, I'll do that। uh, 4:30 में कितना टाइम बचा है? 10 minutes। Okay, 10 minutes, sir. okay। एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला देता हूँ, तब तक थोड़ा बहुत हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये आई विल जस्ट गिव यू, वो थॉमसन से रिलेटेड नहीं है, जस्ट ऐसे। उस फॉर्मूला का क्या यूज है सर? बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करना होता है। Relationship between the radius of nucleus and mass number of an atom। R equal to R naught root 3 of A root cube Very of A. good, so proud of you। Now do one thing, concentrate here। Listen, everyone. So shall I say that if any element is there, X, A, Z, right? Now understand that that particular element have a nucleus. In that nucleus, I have neutron as well as proton. Neutron and proton as approximately equal radius. The number of neutron plus number of proton will be equal to mass number। या जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना बड़ा न्यूक्लियस होगा, उतने ज्यादा वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन उसके अंदर फिट करेंगे। भैया एक प्रोटॉन छोटा न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन चार न्यूक्लियॉन, तो न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा बिकॉज ज्यादा पार्टिकल। तो शैल आई से दैट जितने ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स आएंगे न्यूक्लियस के अंदर, उतना ज्यादा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉरी। Now understand that मैं कह सकता हूँ ना, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to mass number। भैया जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेगा। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? स्फेरिकल होता है ना, तो अगर न्यूक्लियस स्फेरिकल है तो आई विल बी गेटिंग 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होल क्यूब is directly proportional to mass number। 4/3 pi r cube is directly proportional to mass number।
remove this proportionality constant, so I'll get 4/3 pi radius of nucleus whole cube is equal to k. proportionality constant हटाने के लिए कोई भी constant डाल दो into a. So I'll get radius of nucleus whole cube is equal to k divided by 4/3 pi into a. ये भी एक कांस्टेंट है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? दिस कांस्टेंट 1/3 क्यूब रूट ले लिया इंटू a का 1/3, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू इस पूरे कांस्टेंट को हमने r0 ले लिया, तो Rn इज इक्वल टू r0, Rn इज इक्वल टू r0 a रेज़ टू पावर 1/3, जहां पे r0 का वैल्यू है ना वैरी करता है 1.1 से 1.5 के बीच में into 10⁻15 मीटर. Generally for calculation purposes we will take 1.3 into 10⁻15 मीटर. Yeah, not that. So the relationship between radius of nucleus and mass number. Getting it? लिख लो इसको. सर या बोलो सर हाँ हाँ सर उस k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, जस्ट टेक इट एज अ कांस्टेंट. सुनो एवरीवन, सर r0 तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियन था ना? नहीं, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से अप्रोक्सीमेटली, बट बीच में गैप्स होंगे ना बेटा, जरूरत हो ना कि एकदम उसके इक्वल हो, थोड़े बहुत गैप्स रहेंगे बीच में. सुनो, अरे यार खुद सोचो ना, ये न्यूक्लियॉन्स है, जब मैं न्यूक्लियॉन्स को पास में बांधूंगा ऐसे, एक न्यूक्लियॉन, दूसरा न्यूक्लियॉन, तीसरा न्यूक्लियॉन, चौथा न्यूक्लियॉन, पांचवा, छठा, सातवां, तो बीच में गैप्स आएंगे ना, गैप्स आ रहे हैं ना, तो एग्जैक्टली रेडियस ऑफ न्यूक्लियॉन नहीं होगा. बट सर नेग्लिजिबल होंगे ना गैप्स, हम लोग ऑलरेडी पूरे यूनिवर्स की डेंसेस्ट चीज के बारे में बात कर रहे हैं. सुनो, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी तो नेग्लिजिबल ही है ना, तो वो जो नेग्लिजिबल है ना वो इतना नेग्लिजिबल नहीं होगा उनके लिए, मैं इग्नोर नहीं कर पाऊंगा उसको. गेटिंग इट? वो इतना भी नेग्लिजिबल नहीं है कि मैं पूरा इग्नोर कर पाऊं उसको, तो फर्क है. ठीक है, खुद ही सोच लो ना, बहुत सारी टेनिस बॉल्स का एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर लो, तो क्या मतलब वॉल्यूम ऑफ जो स्टैक होगा वो टेनिस बॉल के वॉल्यूम की मल्टीपल थोड़ा ना होगा, बीच में गैप्स आएंगे ना, और वो गैप्स नेग्लिजिबल नहीं होंगे. रिमेंबर दैट. अच्छा सुनो, दोबारा समझ लो, मैंने कहा कि जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे तो उतना ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बड़ा जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और बढ़ जाएगा. मतलब जितना मास नंबर होगा ना बड़ा, उतना बड़ा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा. तो हमने वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होगा, तो हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, तो हमने बोल दिया वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर. वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? 4/3 pi r cube स्क्वायर है ना, तो वेयर Rn इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू a. 4/3 pi r cube प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया तो रेट कांस्टेंट आ गया. उसके बाद 4/3 pi r cube इज इक्वल टू ka आ गया, तो r cube इज इक्वल टू k into 4/3 pi a आ गया. इसका क्यूब रूट ले लो, तो क्यूब रूट लिया, ये पर्टिकुलर कांस्टेंट है 1/3 a 1/3, इस कांस्टेंट को मैंने r0 बोल दिया, और मैंने बोला r0 की वैल्यू जनरली ये लेंगे. That's it. Getting it? तो ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वर्सेस मास नंबर, आई गेस. ठीक है, मैं भेजता हूँ. ठीक है,
मेरे ख्याल से कल मॉर्निंग तक तुमको वो शीट मिल जाएगी, लेट नाइट प्रिपेयर करके भेजता हूँ, ठीक है? ओके, टेक केयर, है ना? एंड सर आर नॉट की वैल्यू कैसे मिली? इसकी आर नॉट हाँ, आर नॉट की वैल्यू वेरी करेगी। कैसे मिली? कैसे मिली? बेटा हमने ना बहुत सारे न्यूक्लियस उठाए, बहुत सारे न्यूक्लियस का ना वॉल्यूम कैलकुलेट किया, तो वॉल्यूम और मास नंबर के बीच में जो रिलेशन आया ना, तो उससे कांस्टेंट आया। ये कांस्टेंट ये बताएगा कि कितना कॉम्पैक्टली न्यूक्लियस पैक्ड है। अगर के की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, तो न्यूक्लियस कम स्ट्रांगली पैक्ड है, और बहुत कम है ना, तो बहुत ज्यादा पैक्ड है, और ये न्यूक्लियस फोर्सेस का फंक्शन होगा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? अलग करते हैं, हाँ वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है, ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है कि अगर मैं कोई भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन में जो मैं आर्टिफिशियली करवा रहा हूँ ना, जिसमें एक एटम और दूसरे एटम को बम्बार्ड कर रहा हूँ ताकि एक नया एटम मिले, तो उस रिएक्शन को ना ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन कहते हैं। वॉज फ्यूजन कंट्रोल इन दिस केस? या, बिकॉज लेस अमाउंट ओनली दे हैव टेकन, अदरवाइज एटम बम बन जाता, बचता नहीं। Yeah. Right. चलो take care. Okay, see ya. हाँ. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Now how to leave meeting? हाँ. Bye, sir. Bye. Bye. Bye, sir. Okay.